Hello everyone, my name is Kiran Khemani and welcome to the channel of EduCircle Education 360. So we are MCQ series of economics. So this will consist of all the chapters that are going to come in the term 1 examination. So this series is going to be very helpful for you guys. Why? Because first of all, with the MCQs, we are going to go through the concepts. So this is how you will revise all the concepts which come across. Okay, so this series is divided in different parts. And this is the first part of the series. Let's see what do we have in store. Before starting with this series, let's see what do we have in our portion for this term 1 examination. As you can see that we know that our exam is for 40 marks. We are going to have 90 minutes, which means you have ample of time to read each and every question and each and every answer. Okay, since you have options, right? अगर आपको नहीं पता है कि आपका पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, so you can download the sample question papers given by CBSE. ठीक है, सारे इसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन गो थ्रू देम वंस. यू विल सी हाउ इज द पेपर पैटर्न गोइंग टू बी लाइक. सो यू हैव वेरियस ऑप्शंस. The questions that you know you can attempt first and leave the questions that you don't know, because 90 minutes is not less. हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है. See, since economics is not so theoretical like BS, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों चीज कंबाइन रहती हैं. यूजिंग हो सकता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. इसलिए इकोनॉमिक्स में हमको हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, आंसर को भी 2 बार पढ़ना है, राइट? So part A of your paper will consist of macroeconomics, money and banking, government budget and balance of payments, which are equally divided in terms of weightage of marks. Then we have Indian economic development. Indian economic development may we have 2 parts: current challenges. Current challenges can we have first, and then before that we have development experience at the eve of independence. Okay, at the time of independence and when 1991 reform was made of liberalization, privatization and globalization. So this is what we basically have. This part has a good weightage of 12 marks, and then we have this weightage of 10 marks. Okay, so now you know where do you have to focus and decide for yourself. Some people are good at macro, some people are good at IED. That's completely fine. Just choose your strength areas and work on it. Okay, and do those questions first. Let's see the first question. It says that central bank, okay, central bank is an apex bank, rural bank, regional bank या फिर commercial bank. तो सबसे पहले we need to know what is the central bank. Okay, so we know that a central bank in India is nothing but Reserve Bank of India, that is RBI. So Reserve Bank of India is known as the banker of all the banks, the mother and the father of all the banks. So it is basically at the top of all the banks. That's why it is called as the apex institution. Apex का मतलब ही होता है कि वो सबके टॉप पे है. रूरल बैंक वो बैंक्स होती हैं जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट है. रीजनल बैंक्स लाइक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, दे टेक केयर ऑफ द एशियन कोई पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट, जैसे एशिया का डेवलपमेंट. Okay, then commercial banks like SBI, Union Bank of India, they mainly are there to accept deposits and give loans to general public. So central bank is known as the apex bank. Okay, next, what do you mean by credit creation by commercial banks? क्रेडिट क्रिएट, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है. तो बेसिकली अगर डिपॉजिट क्रिएट होते हैं कमर्शियल बैंक्स में तो वो मल्टीप्लाई होता जाता है. तो फॉर एग्जांपल इफ ए इज अ पर्सन हु इज डिपॉजिटिंग मनी, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसको जो नहीं चाहिए वो कमर्शियल बैंक में जाके डिपॉजिट करता है. देयर इज वन पर्सन कॉल्ड एज बी, ही इज इन नीड ऑफ मनी, उसको बिजनेस करना है न्यू, तो फिर वो जाता है कमर्शियल बैंक के पास. सो कमर्शियल बैंक एक्ट्स एज अ इंटरमीडियरी और अ लिंक बिटवीन दीज टू पीपल who has excess money and one who wants money. Okay, so
what happens is that commercial banks क्रेडिट क्रिएट जो कर रही है, क्रेडिट क्रिएट कैसे कर रही है इकोनॉमी में, यहाँ से पैसा लेके वो इसको दे रही है। अभी बी क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करेगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, फिर बी आके अपना पैसा एक्स्ट्रा कहाँ डिपॉजिट करेगा, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करेगा, फिर कमर्शियल बैंक ऐसे बहुत सारे लोगों को पैसे देगी जिन लोगों को पैसे की जरूरत. So this is the process of credit creation by commercial bank. So we need to know the root of credit creation. So let's see the options. That credit creation is a process of loan creation. लगता तो यही है सुन के. So it is a process of creation of foreign exchange. No, यहाँ पे foreign exchange की बात ही नहीं हो रही है. It is a process of total withdrawal creation. Withdrawal creation की बात हो रही है यहाँ पे. नहीं, हम लोग यहाँ withdrawals की कुछ बात नहीं कर रहे थे. It is a process of total deposit creation. तो A और D में से हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा. तो क्रेडिट क्रिएशन कहाँ से शुरू होता है, लोन क्रिएशन से शुरू होता है कि डिपॉजिट क्रिएशन से शुरू होता है. सो बेसिकली जब तक हमारे पास डिपॉजिट नहीं आएंगे तो बैंक्स लोन कैसे देगी, राइट? तो दिस प्रोसेस इज मोर कंसर्न्ड विद डिपॉजिट क्रिएशन. ओके, नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दैट इज OMO. ठीक है, अभी OMO क्या होते हैं? सो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ OMO. फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, जैसे इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट्स काफी सारे हैं. वेरी फेमस आर BSE एंड NSE लोकेटेड इन मुंबई. तो यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है. ठीक है, सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यहाँ पे इनका एक्सचेंज होता है. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज वन ऑफ द ऑपरेशन विच इज टेकन बाय RBI. ठीक है, कौन करता है, RBI. कब करता है, जब उनको मनी की जरूरत होती है. ठीक है, उनको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो RBI उनके बिहाफ में मार्केट में क्या करता है, सिक्योरिटीज को इशू करता है या फिर सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करता है. ओके, तो द ऑप्शंस आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी बाय सेंट्रल बैंक. यहाँ पे करेंसी की तो बात ही नहीं हो रही है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक्स, यस. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बैंक्स नहीं, कमर्शियल बैंक्स नहीं, कमर्शियल बैंक्स OMO नहीं करते हैं. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नहीं, जहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो ऑप्शंस को हम लोग कट कर देंगे. नाउ लीगल रिजर्व रेशियो, व्हाट इज दिस, LRR. ठीक है, तो लीगल मतलब जो भी गवर्नमेंट हमको इंस्ट्रक्शंस देती है उसको कहते हैं लीगल. रिजर्व रेशियो, तो ऐसा कोई रिजर्व रेशियो है जो लीगली गवर्नमेंट ने बोला है मेंटेन करना है. किसको मेंटेन करना पड़ता है, कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना. सो देयर आर टू रेशियोज, वन इज CRR, ठीक है, एंड वन इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो. ये दोनों रेशियोज कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करने पड़ते हैं सो दैट दे कैन यूज दिस रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. पूरा ही पैसा वो लोग लेंड ना करें, कुछ रिजर्व रखें अपने पास. दिस इज कॉल्ड एज लीगल रिजर्व रेशियो. So legal reserve ratio is the sum of CRR and SLR. Now, high powered money. Money is also called as reserve money. मतलब जो पैसा RBI इशू करती है, ठीक है, सोसाइटी में, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज कॉल्ड एज हाई पावर्ड मनी. फाइन. तो हाई पावर्ड मनी पहले इशू करती है RBI, फिर वो सर्कुलेट करती है कमर्शियल बैंक्स. सो हाई पावर्ड मनी मतलब जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, द मनी विच इज इन सर्कुलेशन, बेसिकली मनी सप्लाई. तो हम लोगों को मनी सप्लाई के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो मनी सप्लाई में क्या क्या आता है, तो मनी सप्लाई के बहुत सारे मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3, M4. हम लोगों को M1 पे फोकस करना है बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज इन सर्कुलेशन, राइट. और टाइम्स जो होता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं विच आर फिक्स्ड, फाइन, फॉर अ ड्यूरेशन. सो दैट इज नॉट इन सर्कुलेशन. हम लोगों को M1 पे फोकस करना है, इसीलिए C और D तो ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि वहां पे टाइम डिपॉजिट दिया हुआ है. एंड इफ वी टॉक अबाउट हाई पावर्ड मनी, it is definitely C मतलब currency which is issued by RBI. R means the reserves of the commercial bank. तो reserves मतलब जो पैसा रिजर्व सेट के रखा है, तो वो भी तो RBI ने इशू किया था, उसी को ही रिजर्व किया है, राइट. एंड OD means other deposits of RBI.
So it basically consists of C plus R. So let us understand one thing. C is the currency with the public. तो जो पैसा पब्लिक के हाथ में है, अगर वो सी है, तो वही पैसा वो डिमांड डिपॉजिट्स के वे में सेव कर रहे हैं. कहाँ पे? कमर्शियल बैंक्स में. तो सी और डी, अगर हम लोग सी को पूरा ही कंसिडर करेंगे तो डी उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट? सो वी टू कंसिडर सी एंड डी. Fine. So this will not be high powered money. High powered money will consist of money which is issued in the form of currency to the public, which is kept as reserve, and other deposits which are of the RBI. So B will be your answer. Okay. So now credit multiplier. Credit multiplier का मतलब होता है money multiplier. ठीक है. Money multiplier is a topic which is very important. एंड एक्सप्रेस करता है कि कैसे कमर्शियल बैंक्स के पास अगर कुछ पैसा आता है इकोनॉमी में, उसको वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बाय गिविंग लोन्स टू द जनरल पब्लिक. तो कमर्शियल बैंक्स को कुछ डिपॉजिट मिलता है और उनको पैसा फिर रिजर्व रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ CRR, SLR या फिर LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. सो वो पैसा रिजर्व रखने के बाद कमर्शियल बैंक्स कैन गिव लोन्स टू द जनरल पब्लिक. And this is how money gets multiplied in the economy. If we keep CRR या फिर SLR या फिर LRR in the denominator and 1 in the numerator, मतलब basically dividing CRR, so we'll get the answer that how much times the money get multiplied in the economy. So the answer is A, 1 upon CRR. Next is capital receipts. So this question is coming from government budget. ओके. गवर्नमेंट रिसीट्स मतलब जो पैसा हमारी लाइबिलिटी क्रिएट करता है. लाइक फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया तो आपको रिसीट्स तो हुई, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स. एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड एज कैपिटल एंड इनकमिंग इट इज कॉल्ड एज रिसीट्स. बट लोन लेने से हमारी क्या हो रही है? लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है. हमारी मतलब किसकी? गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं हम लोग. सो द आंसर इज बी. ओके. नेक्स्ट, द पॉलिसी यूजफुल टू रिड्यूस इज ऑफ इनकम. ठीक है. तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है जो यूजफुल होती हैं फॉर रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. इनइक्वालिटीज इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर लॉट ऑफ रिच पीपल एंड द लॉट ऑफ पुअर पीपल इन द इकोनॉमी, सो देयर इज अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन अ पर्टिकुलर कंट्री. इसको रिड्यूस करना है तो गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाती है, बजटरी पॉलिसीज बनाती है, कि फॉरेन पॉलिसीज बनाती है. सो लेट अस सी द ओवरव्यू. मॉनेटरी पॉलिसीज जो RBI बनाती है, फॉर व्हाट? फॉर क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी. तो क्रेडिट क्रिएशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. ठीक है. तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स मतलब जैसे पार्क्स, रोड्स, ये सारे गुड्स जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, ये उसके बारे में बात नहीं कर रही है. फॉरेन पॉलिसीज. फॉरेन पॉलिसीज मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, तो ये उसके बारे में भी बात नहीं कर रही है. द लेफ्ट ओवर ऑप्शन इज C. So how we solve this MCQs is by the method of elimination. Method of elimination से आप कोई भी MCQ easily solve कर सकते हो. Basically the theoretical MCQs like these. Okay. Now, something related to fact. Where and when was the word budget first used? तो budget ये word first कहाँ use किया गया था? Okay, so let us see. 70 में budget word use किया गया था. Okay, you can read this whole thing. In England, ठीक है, हम लोग year से ही समझ गए. But 1733 the word budget was first used. Okay. Which of the following is not an item of revenue receipt? दो टाइप के रिसीट होते हैं. We have already discussed this before. Revenue receipts मतलब जो current receipts होती हैं. Current receipts मतलब for a particular period of time. तो गवर्नमेंट की रिसीट्स की बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट को जो टैक्स इनकम होती है वो रेवेन्यू रिसीट होती है, बिकॉज इट कम्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. डिविडेंड, अगर गवर्नमेंट ने कोई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है तो डिविडेंड उनको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है. नॉन टैक्स इनकम्स लाइक चालान्स,
ठीक है, चलान्स भी है, इनकम होती है गवर्नमेंट की विच इज अ रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, बुकिंग ये रहते हैं गवर्नमेंट के। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रांट, ग्रांट मतलब लोन या फिर एनी अदर बोरोइंग विच इज टेकन और गिवन, fine. So this is not a revenue receipt, this is a capital receipt because it is not a daily operational part and this happens once in a while. It creates either asset or liabilities. So grant C is the option. I hope you have understood all these MCQs. Please let us know what do you feel about it. And if there is anything you can mention in the comment. Kindly subscribe to the channel because you'll get more such updates, and visit all other parts. This was the part 1. Part 2, part 3 are also released in the playlist. So go watch it, and all the best for your examination. Thank you.